The reason I'm poor is because मेरे पेरेंट्स ही पहले से गरीब हैं, मैं क्या करूँ? The reason I'm poor is because मुझे कभी अच्छी एजुकेशन मिली ही नहीं है. The reason I'm poor is I'm too dumb. I'm not as smart as my friends. Poor and entertainment go together. Poor people invest their time and money in entertainment. Rich people invest their time and money in education. Poor लोग जो होते हैं उनके लिए पर्पस ऑफ मनी एक ही होता है, महीने की ये तारीख आए, मुझे सैलरी क्रेडिट हो और मैं वो पैसे खर्चूं. मिडिल क्लास पीपल दे वांट मनी सो दैट दे मेंटेन अ ग्रेट क्रेडिट जो उनको स्टेटस मेंटेन करने के लिए चाहिए. द रिच पीपल की जो बात करते हैं, दे वांट टू मेक मनी सो दैट दे कैन. Do you want to know what's really holding you back from becoming rich? क्या आप जानना चाहते हैं कि all the successful people क्या अलग करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं? If yes, then this video is for you. हम wealth mindset के ऊपर काफी बात करते हैं. So many of my videos I talk about how to have wealth mindset. Why in this video are we talking about poverty? Why are we talking about being poor? The reason is ये तो पता चले कि poor लोग सोचते क्या है और वो लोग क्या गलतियां करते हैं ताकि we do not keep continuing making those mistakes which will help us move towards wealth mindset faster. तो इस वीडियो में मैं ऐसी 7 गलतियों के बारे में बात करना चाहूंगी जो poor लोग करते हैं और इस रीजन की वजह से they are poor. I mean they are where they are. But first let me make it clear guys, जब हम poverty की बात करते हैं, poor लोगों की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है that you start visualizing people without shelter, food or clothing. It's not about that. Being poor means holding yourself back from buying things that you really desire in life because you do not have enough money. So in a nutshell, being poor is when you're not wealthy. That's what the meaning of being poor is, right? So what are the things that poor people focus on which you'd rather not focus to move from being poor to being rich? सबसे पहली चीज जो poor लोग फोकस करते हैं वो ये है, they focus on having a lack mindset. इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. Lack mindset मतलब focusing on something which is not there. Do you know interestingly guys, science ही बताता है कि हमारा human brain is being designed to focus on lack and attack. मतलब आपके जीवन में चाहे everything is fine, everything is just great, लेकिन अगर एक छोटी चीज भी मिसिंग होगी, आप सिर्फ उसी मिसिंग चीज के ऊपर फोकस करिए. That's how our brain is designed to function. और इसीलिए जब wealthy लोगों की बात करें तो on an average, majority of the people fall under the poor and the lack mindset because ये lack mindset से बाहर आके abundance mindset में सोचना अपना brain का normal function नहीं है. हमें बहुत काम करना पड़ता है to get out of that mindset, to get out of that habit, to focus on lack. सबसे पहली सबसे इनिशियल स्टोरी मैं आपको बता दूं तो आदम एंड ईव की. जब सेन ने उन्हें कहा था कि पूरा जंगल है, इतने सारे झाड़ है, you are allowed to eat the fruits from all of the trees but from that one tree. और उन्होंने क्या किया? उन दोनों ने वही पेड़ से उठा के फल खाया जो वो उनको अलाउड नहीं था. Because that's the primary example of focusing on lack. एक ही चीज अलाउड नहीं थी. Imagine God giving you abundance in 99% things, but you focusing on that 1% जहाँ पे abundance नहीं है, जहाँ पे कुछ missing है, जहाँ पे lack है, और ये चीज़ हमें broke रखती है, और ये चीज़ हमें stuck रखती है poverty में, और इसलिए हम ऊपर नहीं आ पाते. So many of my students come to me saying that I'm not able to make money, which is given, which is fine. And then जब उन्हें बाकी areas के बारे में बात करते हैं, how is health? It's fantastic. How a relationship is fantastic. Everything is fine. Spiritual quotient is high. Community presence is high. Influence impact सब कुछ अच्छा है. लेकिन एक पैसे के मामले में गड़बड़ है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि ऐसा सोचने लगते हैं कि अब मेरा जीवन कुछ काम का नहीं because I'm not able to make money. I feel so helpless and I feel so lost and sad and depressed because I don't have this thing in my life. This is a common language in which we talk. पता है ये major reason जो हम lack पे focus करते हैं क्योंकि हम हमारी attention वहाँ पे देते हैं. और remember this saying always कि जहाँ पे आपकी attention जाएगी वहीं पे आपकी intention भी जाएगी. आप intend करते हो कि मैं एक wealthy mindset create करूँ, लेकिन आपकी attention अगर lack पे है तो आपकी इंटेंशन कोई काम नहीं करेगी क्योंकि आपकी इंटेंशन आपके अटेंशन को ही फॉलो करेगी. सो द फर्स्ट थिंग टू आस्क योरसेल्फ इज वेयर इज माय अटेंशन गोइंग? When I start my day or when I end my day with gratitude, am I focusing on all the things that are great in my life? और मैं सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जो मिसिंग है. अरे यार बस ये ठीक हो जाना तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी. अरे बस ये मेरा टेंडर पास हो जाए. अरे बस ये मेरे रिलेशनशिप वर्क हो जाए. अरे मेरा हेल्थ का ये एस्पेक्ट मेरी रिपोर्ट में ये ठीक आ जाए. When we completely focus on that one thing missing, तो हम abundant mindset create ही नहीं कर पाते. And always remember, poor और rich के बीच में difference ये है in their overall mindset. Mindset की अगर बात करें तो they think about
abundance not only in terms of just money, but abundance in all areas of life. So when you're poor, you may be poor not just in money, but poor in relationships, poor in your giving capacities, poor in your, in building your community presence, poor in your spirituality quotient. So it's all together. सारे areas को मिलके हम देखेंगे कि कहाँ पे हम lack पे focus कर रहे हैं और कहाँ पे हम abundance पे focus कर रहे हैं. दूसरी चीज को लोगों को stuck रखता है, वो है the main purpose of money. आपके लिए मनी का पर्पस क्या है? ये मैं हमेशा बताती हूँ, वी ऑफन टॉक अबाउट दिस, कि 3 टाइप के लोग होते हैं. वन इज द पुअर पीपल, वन इज द पीपल ऑन मिडिल क्लास, समवेयर इन बिटवीन, एंड द थर्ड कैटेगरी इज द रिच कैटेगरी ऑफ पीपल. तो पुअर लोग जो होते हैं उनके लिए पर्पस ऑफ मनी एक ही होता है कि कब महीने की ये तारीख आए, मुझे सैलरी क्रेडिट हो, या महीने का वो आए जहाँ पे मुझे पेमेंट्स मिले मेरे गुड्स और सर्विसेज के लिए, और मैं वो पैसे खर्चूं. दैट्स द प्राइमरी पर्पस दे थिंक अबाउट मनी. मिडिल क्लास पीपल, दे वांट मनी सो दैट दे मेंटेन अ ग्रेट क्रेडिट, ताकि वो क्रेडिट पे वो और चीजें ले पाए जो उनको स्टेटस मेंटेन करने के लिए चाहिए. The third category of people, the rich people की जो बात करते हैं, people with a wealthy mindset, उनका purpose of money बिल्कुल अलग होता है. They want to make money so that they can put that money to buy more assets, and when those assets make money, they spend that money. Which means rich people see money coming as an opportunity to invest. They allow their money to make money for them, और वो जो money आता है उसे वो खर्च करते हैं. That is a basic mindset, the difference of people in poor and wealthy. कि आपके लिए मनी का पर्पस क्या है, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं. That is the basic difference. और जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरे पैसे कमाने का पर्पस is not to spend money or to maintain my credit, but to make more money out of it, that is the time you'll get unstuck out of this whole poverty thinking. तीसरी चीज जो आपको स्टक रखती है पॉवर्टी में, वो ये है कि आप ज्यादा ही अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं, विच मीन्स के आपके आसपास की चीजें जो आपको रोके रखती है, आप उसी पे फोकस करते हैं, एंड यू एंड अप ब्लेमिंग दोस ऑल द टाइम. पीपल से थिंग्स लाइक द रीजन आई एम पुअर इज बिकॉज मेरे पेरेंट्स ही पहले से गरीब है, मैं क्या करूं, उन्होंने कभी वेल्थ बनाई नहीं है तो मैं भी वही कर रहा हूँ. द रीजन आई एम पुअर इज बिकॉज मुझे कभी अच्छी एजुकेशन मिली ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास तो इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे अच्छी एजुकेशन दे. और द रीजन आई एम पुअर इज आई एम टू डम, आई एम नॉट एज स्मार्ट एज माई फ्रेंड्स. All of these reasons हमारे circumstances को blame करते हैं, and poor people do that with exceptional ease. You know, circumstances मतलब क्या? In effect, circumstances का definition ये है कि पूरे circle जो है ना, आप वो circle के बीच में घिरे हैं. This is the meaning of a circumstance. तो ऐसा लगता है कि पूरे सर्कल के अंदर आप घिर गए हैं और वो सर्कल इतना बलवान है कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे. एंड गाइस, द ओनली वे यू कैन ब्रेक दिस सर्कल एंड गो आउट ऑफ दिस इज टू हैव अ फोर्स जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको वो वहां से, वो पूरे सर्कल से बाहर निकालेगा. वो फोर्स है आपके सीधे डायरेक्ट जो आपको दिखता है, और वो है आपका पर्पस. आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो अगर इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, इफ दैट इज रियली स्ट्रॉन्ग, only that thing has the capacity to push you out of that circle, to break you free from that circle. तो circumstances सबके जीवन में होते हैं, सबके जीवन में ऐसी चीजें होती है जो उनको रोके रखती है, but how strong you are to get out of that circle, how strong is your willpower and your ability to do whatever it takes, that will depend upon how clear your purpose is, how strong you are connected to your purpose. जितना ही ज्यादा clarity और connection होगा आपको अपने purpose से, उतनी ही आसानी से आप circumstances के बाहर निकल पाओगे. And then you will no longer say this कि I am poor because my circumstances are holding me back. You'll say I'm rich because I rose above my circumstance. That's a major difference between the poor and the rich mindset. The next one is जब हम ये realize करते हैं कि हमें entertainment से ज़्यादा हमारे education पे focus करना है. एक बड़ा ही इट्स अ वेरी कॉमन हैबिट पुअर और रिच पीपल की जब हम हैबिट सिखाते हैं हमारे प्रोग्राम में. द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पुअर पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन एंटरटेनमेंट, रिच पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन एजुकेशन. बहुत बढ़िया ना. आई वाज ड्राइविंग विद अ फ्रेंड व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वन ऑफ माय मास्टरमाइंड्स इन यूएस, और ही वाज ड्रॉपिंग मी टू माय होटल. एज यूजुअल बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे थे, वो भी उनकी गाड़ी में पॉडकास्ट सुन रहे थे. तो जैसे अपनी गाड़ी चालू की उनका पॉडकास्ट शुरू हो गया, एंड देन आस्किंग क्वेश्चंस लाइक कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, किसका है, किसके ऊपर बात करें, इसमें क्या सीखने मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन आई आस्क्ड हिम दिस वन क्वेश्चन कि तुम्हारी फेवरेट सिंगर कौन है, तुम्हारी फेवरेट प्लेलिस्ट क्या है. तो बड़े सरप्राइजिंगली मेरे तरफ देखने लगे वो, और बताया कि म्यूजिक मैं नहीं सुनता हूँ. He said my car is my automobile library, it's my mobile library, it's not the place for music.
So I said, why is that so? And then he smiled at me and he said, Meghna, you cannot afford to listen to music when you're broke. Broke और entertainment साथ में नहीं जाते हैं. अगर आप broke हो तो आपको education पे focus करना है. He said, this is the learning that I had in my days जब मैं broke था. Now तो he is a very big shot millionaire in US. But वो बताते हैं कि that learning has stayed with me ever since then. तब से मैंने अपनी learning चालू की. जब भी मैं गाड़ी का बटन चालू करता हूँ, immediately कोई ना कोई learning podcast या video चालू होता है, where I'm constantly learning when I'm driving. It's constant education on the go. और वो बड़ी लाइन मुझे अच्छे से हिट हो गई. Poor and entertainment go together. Entertaining yourself is not bad, but at what zone of life are you doing that? That's important. क्या आप entertainment पे focus कर रहे हैं या education पे focus कर रहे हैं? अगर you're constantly focusing on entertainment while आपके बैंक account bleed कर रहा है, that is not how it works. This is an indication that this is the time to focus on education. कहाँ पे मैं अपनी skill building करूँ, कहाँ पे मैं अपनी talent को ऊपर लेके जाऊँ, ताकि I move on to another level of abundance in my life, financial abundance in my life. क्योंकि हम जानते हैं कि that is where the abundance lies. So that is a major difference number 4 between the rich and poor. The next one is कि जब हम poverty में होते हैं तो इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और वो है आपकी distraction. कहाँ हम distracted रहते हैं. There are so many things, especially मैं बताती हूँ कि in this day and age of social media, humongous distraction outside. बच्चों को देख लो ना, 12-13 years kids all the way to 80-year-old people. They're all glued on to their devices. Because there is way too many things happening all over social media. तो इतना आसान है distract होना. I remember when I was that age, there were way too fewer distraction. Distraction जैसा कोई term ही नहीं था तभी. The only distraction was when you used to spend time with friends or watching movies. That's all. यहाँ पे now, when you see so many decades down the line, there's massive distraction on social media as well. तो ये जब तक आप distracted रहोगे, distraction is the opposite of focusing on your purpose. तो इट्स ऑल अ लूप. जब तक हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, पर्पस से इतने डिस्कनेक्टेड और दूर रहते हैं, एंड देन वी कॉन्स्टेंटली ब्लेम आवर सर्कमस्टेंसेस बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू हैव दिस राइट माइंडसेट, द एजुकेशन माइंडसेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पर्पस. बिकॉज ऑफ दैट वी ऑलवेज फोकस ऑन लैक. ये पूरी विशियस सर्कल है, पूरी साइकिल है जो चालू ही रहेगी अनलेस एंड अंटिल वन फाइन डे वी ब्रेक द चेन, सेइंग दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय पर्पस. मैं लैक पे फोकस नहीं करूंगा, मनी का पर्पस क्या है समझूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम माय सर्कमस्टेंस एनीमोर. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एजुकेशन. दैट चेंजेस द होल गेम फॉर यू गाइस. द नेक्स्ट वन, और ये भी मुझे बहुत पसंद है, जो बताता है कि हम एजुकेशन के साथ साथ हमारी स्किल बिल्डिंग कितनी करते हैं. हाउ मच इज आवर लर्निंग, कौन से स्टेज पे हमारी लर्निंग जा रही है. क्या आपके जीवन का एक भी दिन ऐसा गुजरता है जब आप कोई नई चीज नहीं सीखते हैं? इफ यस, देन से टू योरसेल्फ दैट यू हैव नॉट ग्रोन दैट डे. क्योंकि जब हम नई चीज सीखते हैं, यू नो, योर ब्रेन रिमेन्स एक्टिव विद एवरी न्यू स्किल और टैलेंट यू लर्न. एनीथिंग न्यू जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो दिन वो आपके ब्रेन में नया न्यूरॉन कनेक्शन बिल्ड करती है. और ब्रेन की प्लास्टिसिटी के बारे में हम सुना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बताते हैं उसको, कि ब्रेन वही नहीं रहता जब हम, यू नो, इट्स नॉट द सेम एज द वन वी गेट एट बर्थ. वी कैन एक्सपैंड इट बिकॉज इट्स प्लास्टिक. एंड हाउ डू एक्सपैंड इट? बाय बिल्डिंग न्यू न्यूरॉन कनेक्शंस. जब एक बार सीखते हैं तो नया कनेक्शन बनता है. जब बार बार उसे रिपीट करते हैं, रेपिटेशन से वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. एंड दैट्स हाउ यू एक्सपैंड, दैट्स हाउ यू मेक इट लार्जर एंड बिगर, एंड दैट्स हाउ यू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर एक्टिव. तो आस्क योरसेल्फ एट द एंड ऑफ एवरी डे, मैंने आज कौन सी नई स्किल सीखी. स्किल और टैलेंट में मैंने कौन सा एक नया सिक्का डाला जो आगे जाके मुझे सीड देगा. इट्स ऑल अबाउट दैट. और सीड्स की अगर बात कर ले तो ऐसे समझिए कि आप जब कोई नई चीज सीखते हैं, इट इज एज इफ यू आर हार्वेस्टिंग दोज सीड्स इन अ फर्टाइल सॉइल. वो सारे बीज को आप बो रहे हैं फर्टाइल सॉइल में, जो है आपका ब्रेन. और जितना ही आप उसे बोते हैं, उतना ही ज्यादा फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो सीड्स होते हैं वो बोने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते. सपोज कोई फार्मर होता, वो पूरे अपने सीड्स ब्रेकफास्ट के लिए खा जाता, तो वो क्या बोता, राइट? एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. जो भी नई लर्निंग है उसे इन्वेस्ट कीजिए, उसे कैपिटलाइज कीजिए, सो दैट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन जब आप वो टैलेंट और स्किल डेवलप करें, आपको उसके रिजल्ट्स मिले. एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट कॉमन वन इज व्हेन पुअर पीपल कॉन्स्टेंटली मेक एक्सक्यूजेस. बार. द रीजन इज, 99% ऑफ द पीपल जो वेल्थ माइंडसेट में नहीं है, अबंडेंस माइंडसेट में, उनके मीन्स के बिलो रह रहे हैं, उनको आप पूछेंगे व्हाई आर यू पुअर, व्हाई आर यू नॉट वेल्दी, you will get some or the other reason for it. जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बताया, because of parents, because of circumstances, because of their geographical limitations, because of their skill, talent, बहुत सारे बहाने आएंगे. These are all excuses. आप जानते हैं the wealthiest people
who have successfully created, big organizations and helps make people's life better, जिन्होंने planet के ऊपर अपने marks छोड़े हैं, वो लोग कोई extra privileged family से नहीं आए थे. They have all paved their way towards success. अपने सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के, अपने सर्कमस्टेंस को तोड़ मरोड़ के वो आगे बढ़े हैं. अगर ये लोग एक्सक्यूजेस बनाते, इलॉन मस्क एक्सक्यूज बनाते, मदर टेरेसा एक्सक्यूज बनाते, महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ये सारे लोग एक्सक्यूज बना के रह जाते, डू यू थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी वेयर इट इज राइट नाउ? डू यू थिंक वी वुड बी as happy and liberated the way we are right now? We would not be, right? That's why the only reason is because those people did not make excuses. I did this exercise with my mentor a few years ago, और बहुत ही बढ़िया exercise है. He made me write all the things जो मुझे लगता है मुझे रोके रखा है आगे बढ़ने से. And when I wrote all of them, he said, be extremely hateful towards each of these things that you have written, because these are rubbish. These are excuses जो तुम अपने आप को दे रही हो. इनमें से कोई भी सत्य नहीं है. There's no reality in anything that you've written. Put it in front of you, read it a few times and start reading it in a hateful way. जब तक उन्हें hate करने नहीं लगो, फाड़ के फेंक दो या flush कर दो, because they no longer exist. These are not your reality. They are only your excuse. Next time तुम इनके बारे में सोचो, start with the thing that मुझे लग रहा था ऐसा है, but it's nothing but a bullshit excuse. And that's how you get rid of your limiting, because you all have beliefs. ये सारे हमारे limiting beliefs है जो इतने deep rooted है subconscious mind में, जो हमें रोके रखते हैं. That's what it is for, right? तो ये सारी चीजें जो है, if you really feel that there is some kind of lack mindset that's stopping you, some kind of thing जो आपको लगता है यार, I want to stop being poor, I also want to enter the wealth mindset club category, then you need to stop doing these 7 things right away. And trust me guys, when you stop doing all of these, you will develop an amazingly strong and a wealthy mindset, and take my word of it, because you can never go wrong. ये सारी चीज़ अपने जीवन में से मिटा दोगे, उनको निकाल के रख दोगे, and there's nothing at all that can stop you from going to where you want to be. Thank you so much for listening guys. I wish you joy and abundance in all you do.